Hello friends, let's explain about different theories regarding pericyclic reaction. In last lecture we discussed about general information of pericyclic reactions. So first theory, that is FMO, frontier molecular orbital method. Okay, so two pi molecular orbitals are of particular importance in understanding pericyclic reaction. One is the occupied molecular orbital of highest energy, known as highest occupied molecular orbital, that is HOMO, and the other is unoccupied molecular orbital of lowest energy, known as lowest unoccupied molecular orbital, that is LUMO. These two orbitals are very much important in FMO theory. FMO method is proposed by scientist Fukui. What this method says, that only certain reactive orbitals are interacted during pericyclic reactions called frontier molecular orbitals, that is FMO. Not every and each orbitals, but only certain reactive orbitals participated or interacted. These orbitals are called as frontier molecular orbital. Let's explain the FMO method by giving an example of pericyclic reaction or FMO approach about electrocyclic reaction. What is the electrocyclic reaction? Electrocyclic reactions are those in which either a ring is formed with the generation of a new sigma bond and the loss of a pi bond, or ring is broken with the loss of one sigma bond and gain of one pi bond. इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में एक तो रिंग ब्रेकिंग होगी या फिर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी विद द फॉर्मेशन ऑफ और लॉस ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड. सो एग्जांपल, साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग फॉर्म में है, एक्टिवेशन होगा थर्मल एक्टिवेशन, तो कन्वर्शन होगा उसका ब्यूटाडाइन में. ये एक एग्जांपल है. यहाँ पे रिंग ब्रेकिंग का ये एग्जांपल है. अनादर एक एग्जांपल अगर देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल में साइक्लोब्यूटाडाइन के लॉस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एंड गेन ऑफ अ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस, मीन्स K+2 पाई एंड वन एंड लॉस ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड. अनादर एग्जांपल जिसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे. ये भी थर्मल इरेडिएशन ही है. थर्मल इरेडिएशन से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन साइक्लिक ब्यूटाडाइन में. ठीक है, इसमें लॉस ऑफ वन पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस. ओके, these are two examples of electrocyclic reaction. Thus, electrocyclic reactions can be classified into two categories. On the basis of these two, they can be categorized into two types, that is electrocyclic opening of the ring, this one, and electrocyclic ring closure of the conjugated system, alternate single and pi bond. These are two examples of electrocyclic reaction. On the basis of FMO method, we can also explain molecular orbital symmetry. For example, symmetry in linear conjugated pi system. यहाँ पे अगर इथीन का हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ इथीन. इस टाइप से लिखेंगे ताकि डबल बॉन्ड समझ में आ जाए. फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट हियर? 2 कार्बन एटम्स. जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो राइट डाउन नंबर ऑफ pi electrons. Then number of psi functions means number of functions
is psi are equal to number of carbon atoms present. तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस भी कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, दैट इज psi1 एंड psi2, ये 2 फंक्शंस रहेंगे. अब क्या करना है, क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ नोड्स. नंबर ऑफ नोड्स हम n-1 फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. इफ psi n नंबर ऑफ फंक्शन से, देन नंबर ऑफ नोड्स कितने रहेंगे, n-1. अगर psi1 है, सपोज psi1 है, तो क्या है 1-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड कितने रहेंगे फिर ये केस में 0. सो नंबर ऑफ नोड्स फॉर psi1 इज इक्वल टू 0 and node is the position where electron density is 0, means there is no bond formation. Okay, understand? Node क्या नोड क्या दिखाता है, फिर नोड्स क्या है, नोड्स इज द पोजिशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, नाउ इथीन हैव 2 carbons, so draw 2 orbitals like this. For 2 carbons you have to draw 2 orbitals. For odd value of psi function, this is a odd value. Odd value of psi1 is a odd number, psi2 is a even number. So for odd value of psi functions, outer orbitals will have the same sign. These are outer orbitals. These have same sign in case of odd psi function. And for even value of psi function, outer orbitals will have different sign. So यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे उल्टा है. दोनों टाइप से, अगर दोनों भी पॉजिटिव है तो वो भी चलेगा, लेकिन दोनों भी क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए. ये टाइप से अरेंज करने के बाद psi1 में क्या है, 0 नोड है. जब ये फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करते हैं n-1 से, तो psi1 के लिए क्या आता है, नोड 0 आता है. मीन्स नोड 0 है तो क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल. नोड नहीं है, नोड नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है यहाँ पे. ओके, psi2 में क्या होगा, psi2 में अगर नोड कैलकुलेट करेंगे आप, तो psi2 के कितने आ जाएंगे नोड, n-1 फार्मूला से डायरेक्ट अगर 2-1 करते हैं तो, है ना, 2-1 करेंगे तो कितना नोड आ जाएगा, 1 नोड है. यहाँ पे क्या है, psi2 में नोड प्रेजेंट है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है. सो नो बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ psi2. तो ये हो गया किसके बारे में, इथीन का सिमेट्री लीनियर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम. तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इथीन के बारे में. molecular orbital representation. डायग्राम. फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, psi1 psi2 निकालेंगे. ऑर्बिटल्स लाइक दिस, इसके और ये इसके, यहाँ पे भी psi1 है इसलिए सेम साइन रहेगा. ये भी आउटर है तो इसको भी सेम. psi2 के लिए डिफरेंट साइंस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस आ जाएगा. नोड भी याद रखो, नोड कितने हैं यहाँ पे, 0 नोड है 1. ओके, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की क्या पोजीशन रहती है, थर्मल इरेडिएशन करेंगे तो ग्राउंड स्टेट में थर्मल इरेडिएशन से यहाँ पे दोनों भी इलेक्ट्रॉन ये पोजीशन पे रहेंगे. तो ये होगी हाईएस्ट
ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो पोजीशन हो जाएगी, और ये है यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं इसको, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फोटोकेमिकल रेडिएशन से एक्साइटेड स्टेट मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो अभी ये लूमो की पोजीशन होमो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। अगर आपको एफएमओ थ्योरी एक्सप्लेन करनी है तो पूरे थ्योरी के बारे में पहले बताएंगे हम। जैसे फर्स्ट इसमें देखा था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देंगे, उसमें जनरल एग्जाम्पल देके फिर इथीन या फिर 1,3-ब्यूटाडाइन का एक्सप्लेन करेंगे। तो यही टाइप से नोट्स आप बना सकते हैं। ये हो गया अपनी एफएमओ मेथड या और अप्रोच ऑफ एफएमओ मेथड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे पेरिसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन की। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।